Hello students, welcome back to anthropology classes of UPSC main option. So far we have discussed some topics of tribal India. We have discussed tribal situation in India. We have discussed biogenetic variability, the variation among the tribes in respect of physical characteristics as well as genetic variability. Heritability pattern we have discussed in biogenetic variability. We have also discussed about the social aspects of tribes, the social order, various social institutions like marriage, how do they exist in tribes. We have studied about the economic system of tribe, how do they carry out their production activities, their distribution activities. I have also discussed with you the political system of tribes, how the tribes take decision making in their day-to-day affairs. I talked about tribal chief, village headman, village council in political system of tribes. I have also discussed with you so many tribes, various Indian tribes and their distribution among the geographical region of India. I have also discussed with you languages that are spoken by the tribes of India. I have also discussed with you about other things in biogenetic variability like type of blood group system in tribes, HP variant in tribes, okay, and discussed about type of stature do they possess, facial form do they possess, नेसल इंडेक्स उनका कैसा होता है, उनका नोज फॉर्म कैसा होता है, स्ट्रेचर उनका कैसा होता है, हेड फॉर्म कैसा होता है, फेस फॉर्म कैसा होता है, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. सो ट्राइब्स फेस so many problems. Today I will discuss with you the various problems of tribes. So we are studying tribal anthropology, and in this we will study the various tribes problems. Okay, now I will discuss about, first is tribal alienation. Okay, so tribal alienation has been utilized by various scientists, social scientists. Okay, so different, I have discussed with you about the various commissions like Shillong Committee, Lahore Committee, Hakha Committee. Okay, so all these committees were formed to study the different dimensions of tribes.
their communities, their their problems faced by them. So these tribal commissions reports, for example, Khaka reports says that tribals are displaced. Land alienation means that displacement of the tribals takes place from the tribal areas to the non-tribal areas, and there are n number of factors that are responsible for the tribes that are they are being displaced from one region, from their homeland, from their home area to some other place. Okay, so tribal land is also being transferred to for developmental activities for non-tribals, and when these tribes are displaced from their land, when their lands is taken by the government for developmental activities, or the land is transferred to the private sector to set up industries, to set up factories. So what happens? Tribal community that is displaced because of this are not properly compensated. So first problem faced by the tribal communities is land alienation. Land alienation means they are tribes are separated from their lands and are shifted to some other place. Okay, and when the land is taken from the tribes, tribes are not properly compensated. Okay, so what happens? There are various protests that are taken by the tribes. Various types of protests are found among the tribes regarding against land alienation. Okay, sometimes there is this protest turned into violent protest. Okay, so state, in order to maintain law and order, in the name of law and order, tribal people are they are gone through various atrocities by the police. So sometimes tribes remain completely silent because they believe that scientists we have seen such type of protests among the tribes. What type of protest means silence? Tribals remain silent. Whenever their land is taken, tribals remain silent because of their culture, because they are peace-loving people. They don't want to confront with the states. So silent tribals remain completely silent. But in some cases, in some instances, what happens that tribals had no other option but to go for adopt violent protest. Okay, so sometimes NGOs, various voluntary agencies, what they do, they carry out protest on behalf of tribals, or they the NGOs, various voluntary agencies, they protest along with tribes.
Okay. Now land alienation. There are so many factors that are responsible for land alienation. Why? They are just removed from their land. First is manipulation of land records. So officials are manipulating the land records. Revenue officials are involved in, many times revenue officials are involved in manipulation of, okay, land records. So what happens when such a thing happens? So it creates a problem for providing relief measure to the tribes, because when the ownership title of the land is identified, so due to the manipulation of the revenue record, tribes are not adequately compensated. They are not compensated because the tribals who are living in the forest, who are dependent upon the forest, who are having simple form of religion, so don't they are not considered as the legal owner of the land, because lands are already manipulated by the revenue officials, land records are manipulated, and because of this the tribals are not considered as the legal owner of the land. Okay. Also, then there are Benami transfers. So, okay. So, what happens? There are land alienation is also caused by the Benami transactions, Benami transfer. Okay. So, what happens? So, here the involvement of the revenue officials is very much high, because the ownership of the land is being transferred through some Benami transactions. Okay. So in this case also, when some Benami transactions occur, so ट्राइबल्स को अपनी लैंड से हाथ धोना पड़ता है, लैंड उनके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिशियल्स क्या करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, और करप्ट प्रैक्टिसेस से वो क्या करते हैं, जो ऑनरशिप होती है लैंड की, वो वहां पे वो जो है उनके हाथ से ले ली जाती है। क्यों? क्योंकि इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ओके, उसके बाद एक और रीजन है लैंड एलिनेशन का। ठीक है, लैंड एलिनेशन के बड़े सारे रीजंस हैं। एक और रीजन बनता है मॉर्टगेजिंग। होता क्या है, ट्राइबल्स लोग गरीब होते हैं, अब उनको कई बार लोन लेना पड़ता है, तो वो लोन लेने के लिए वो प्राइवेट जो पर्सन होते हैं उनसे लोन लेते हैं, और अपनी क्या करते हैं, लैंड को क्या करते हैं, मॉर्टगेज कर देते हैं। ओके, तो जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो वहां पे लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोन प्रोवाइड करते हैं ट्राइबल्स को, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई होता है, और ट्राइबल्स को बोला जाता है लैंड को मॉर्टगेज करने के लिए, और उनकी लैंड को मॉर्टगेज कर दिया जाता है।
और क्या होता है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो रिच लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, रिच फार्मर्स होते हैं। तो क्या होता है कि अब जो इंडेप्टनेस, हाई इंटरेस्ट होने की वजह से ट्राइबल्स लैंड का लोन जो है वो चुकाने में असफल रहते हैं। तो होता क्या है, उनको अपनी लैंड से हाथ धोना पड़ता है। लैंड्स ऑफ ट्राइबल्स आर स्नैच्ड by the local money lenders. So mortgaging is also another reasons for land alienation. Okay, so next is encroachment. So encroachment, when non-tribals they come and reside in the area of tribal land, or when they, because in many cases there are no proper land records, so non-tribals they go and live in the tribal areas, because tribal area, because of the non-availability of land records, tribals can't claim their ownership on the land. So encroachment is very detrimental for tribes, and it leads to land alienation. It leads to land alienation. Okay. Then another reason is developmental induced displacement. होती क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, बनाना है, डैम बनाना है, ओके, या फिर कोई मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर लैंड्स ले लेते हैं, ओके। तो होता क्या है, अब वो बोलते क्या है, वो बोलते हैं कि हम तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, वहां के लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो होता क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे उनसे लैंड ले ली जाती है और उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ऐसे बड़े सारे केसेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो झारखंड में जब बनाई गई थी, ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बड़े सारे विलेजेस जो थे उनका डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें ओरवान ट्राइब्स थे, मुंडा ट्राइब्स थे, ओरवान मुंडा को हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पढ़ने से वहां से उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उनको लैंड एलिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, ओके। अब देखा जाए कि लैंड जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होती है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होती है, तो वो भी एक रीजन बन जाता है लैंड एलिमिनेशन का, ओके। जैसे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन को लेके, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स कैरी आउट करती है, ठीक है। जैसे टाइगर रिजर्व्स बनाती है, ठीक है, नेशनल पार्क्स बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसकी वजह से जो वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज होती है, मैंने बताया इंडिजिनस ट्राइब्स क्या होती है, जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं उस एरिया के, ठीक है, और जो उनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के, उनको हम बोलते हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो इंडिजिनस कम्युनिटी को वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इसके अलावा और भी बड़े सारे रीजंस हैं लैंड एलिमिनेशन के। तो पहला मैंने रीजन आपको बताया लैंड एलिमिनेशन का कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं और ट्राइबल से उनका हक जो है लैंड जो है उनसे छीने जाती है,
ठीक है। और दूसरा बेनामी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। और बेनामी जो रेवेन्यू ऑफिशियल सिर्फ करप्शन की वजह से वो लैंड को ऑनरशिप जो है वो दूसरे को दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और इलीगल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। ओके। और इसके बाद एक और कारण है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क बने हैं या फिर नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं, तो उसके कारण भी ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहां से वो निकाले जाते हैं, क्योंकि उनका उनका रिलेशन होता है अपने एरिया के साथ। अपने एरिया के साथ वहाँ फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो फॉरेस्ट के साथ हमने देखा था कि विद्यार्थी ने बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। किस तरह से जो उनका सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उनका जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो वो सारा जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है। तो ये कारण मैंने बताए। ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं आपको बता दूं, मॉर्गेजिंग लोन लेते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे लोन लेते हैं। तो लोन रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने की वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो लोन को चुका नहीं पाते हैं, और क्या होते हैं कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो उनकी लैंड को वो स्नैच कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एनक्रोचमेंट। अब उनके पास लैंड को एनक्रोच कर देते हैं नॉन ट्राइबल्स, वहां पे आके वो रहने लगते हैं। तो ट्राइबल्स के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता, ऑनरशिप टाइटल उनका नहीं होता, ऑनरशिप नहीं होती उनके पास, तो कुछ ज्यादा इस पे कर नहीं पाते। ठीक है। तो डेवलपमेंटल इंड्यूस पर जहाँ पे कहीं डैम्स बनाई जाती हैं, कहीं मिनरल की एक्सट्रैक्शन करते हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को लैंड लीज पे दे दी जाती है, तो वहां से ट्राइब्स को रिमूव कर दिया जाता है और उनको शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे। तो इन इस वजह से लैंड एलिनेशन जो है वो हो जाती है। तो लैंड एलिनेशन के बहुत सारे कारण हैं, तो इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोटेस्ट भी करते हैं ट्राइबल्स। कई बार तो वो इतने शॉक में चले जाते हैं तो वो साइलेंट ही रहते हैं, वो साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ नहीं बोलते। ठीक है। और कई बार एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं। ठीक है। कई बार प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट का फॉर्म ले लेता है, तो पुलिस जो है उनके ऊपर एट्रोसिटीज कमिट करती है। ओके। तो ये मैंने बताया आपको मेजर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मेजर्स जो है गवर्नमेंट लेती है लैंड एलिनेशन को रोकने के लिए। ओके। तो सबसे पहले क्या है मैं आपको बताता हूँ, द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, पीसा एक्ट बोलते हैं इसको। तो अब गवर्नमेंट ने देखा कि इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है ट्राइब्स के ऊपर, बहुत सारा उनके ऊपर एट्रोसिटीज कमिट की जा रही हैं, तो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने मेजर्स लिए। ठीक है। उनके मेजर्स लिए, उन्होंने क्या किया, जो पंचायत जो है पंचायतों का गठन किया गया जहाँ पे ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज में, तो वहां पे ग्राम सभा बनाई गई। ठीक है। तो अब क्या हुआ, पीसा एक्ट आने के बाद तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी को भी ट्राइबल की लैंड चाहिए तो उसको पहले पंचायत से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसको पहले जो ग्राम सभा है उस ट्राइबल एरिया की, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे इसके बिना जो है वो लैंड जो है वो अक्वायर नहीं कर सकते, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हो। ठीक है। और उनको रिहेबिलिएट करने की प्रॉपर प्रोग्राम होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, तभी वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं। ओके। तो और एक और मैं आपको बता दूं, एक है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो उसमें क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। अब ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, ट्राइबल लोगों को। ये
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्राइबल लोगों को। कैसे प्रोटेक्शन करता है? उनके जो राइट्स हैं ट्राइबल्स के, ये बताता है कि ये ट्राइबल्स जो है लैंड फॉरेस्ट से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो ले सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट राइट भी इनको एक मेजर है, एक तरीका है जिससे हम लैंड एलिमिनेशन को रोक सकते हैं। ओके, तो जनरेशन से वो ट्राइब्स जो वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास राइट्स है। तो उनके जो ट्राइबल्स हैं ये इनको राइट्स गारंटी देता है। ओके, और अगर आपने जो है लेनी है आपने लैंड ट्राइबल से डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, तो ग्राम सभा का कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पंचायत का कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जाना पड़ेगा, तभी आप ट्राइबल लैंड को अक्वायर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 सब सेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। ठीक है, तो अब क्या कर सकता है कि गवर्नर के पास पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर वो जो ट्रांसफर है लैंड को, अगर लैंड ट्रांसफर को वो रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेटिंग लैंड ट्रांसफर, तो इसके ऊपर नजर रहती है, ओवरसी करता है गवर्नर। जो ट्राइबल की लैंड है उसको सुपरविजन करता है। जब गवर्नर की सुपरविजन रहती है तो इलीगल माइग्रेशन को रोकने में हेल्प मिलती है, एनक्रोचमेंट रोकने में हेल्प मिलती है ना, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करने में ट्राइबल्स को हेल्प मिलती है। ओके, तो आप देखें तीसरा एक्ट जो है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। ठीक है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट है, तो गवर्नमेंट ने एक्ट्स की फॉर्मेशन की है, एक्ट्स लाए हैं ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको लैंड एलिमिनेशन, तो ये सब क्या है, लैंड एलिमिनेशन के चक्कर में इसको दुरुस्त करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट्स लाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्राइबल लैंड को। ठीक है, लेकिन फिर भी अब इतने सारे एक्ट हैं, फिर भी लैंड एलिमिनेशन क्यों हो रही है? क्यों है इतनी ज्यादा लैंड एलिमिनेशन? क्या कारण हो सकते हैं? अब एक्ट तो हम बना देते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करना ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है। ठीक है, तो इसको, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती हैं, तो उनको इन एक्ट्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बड़े सारे लूप होल्स होते हैं, तो उन लूप होल्स को करेक्ट करना है, रिमूव करना है लूप होल्स को, तो तभी हम
इन एक्ट्स का सही मायने में फायदा जो है, बेनिफिट जो है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज को मिल पाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ बताए हैं कुछ। ओके, तो अब दूसरे की बात करें, एक है, अब एक तो हमने पढ़ा लैंड एक्विजिशन, दूसरा हम पढ़ते हैं पॉवर्टी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है ट्राइबल कम्युनिटीज की, वो है पॉवर्टी। ओके, तो आप देखोगे जितने भी जो ट्राइब्स हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, है ना। उनके पास फूड हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, उनके पास सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनके पास ऑर्डिनरी नाइफ्स है, एक्से है ना, मैनुअल प्लाउ है कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए। तो अब इनकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन वो नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो बहुत सारे ट्राइब्स जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव उनकी इकोनॉमी है, तो कोई प्रॉफिट नहीं होता जो एक्टिविटीज ये करते हैं, कोई सरप्लस नहीं होता। ओके, तो अब देखा जाए कि जैसे मैंने, अब देखो आपको लिंक कैसे करना है, अब लिंक कैसे करोगे। अब मैंने आपको बताया कि ट्राइबल लैंड एलिमिनेशन में एक आपको बताया मैंने क्या, मैंने आपको बताया कि मनी लेंडर्स से लोन लेते हैं तो लोन नहीं चुका पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो और गरीब हो जाते हैं और पॉवर्टी की तरफ उनको धकेला जाता है ना। क्योंकि इंडेप्टेडनेस जो है, किस वजह से इंडेप्टेडनेस उनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। तो जो वो मिनिमम जो इनकम वो जनरेट करते हैं, वो सारी इनकम उनकी लोन में चली जाती है, तो सेविंग नहीं कर पाते और एक्टिविटीज में मनी को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये है पॉवर्टी। पॉवर्टी में हम इतना कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी और लैंड एलिनेशन का आपस में रिलेशन है। देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो क्या होगा, वो गरीब हो जाएंगे, ठीक है। वो लोन इंडेप्टेडनेस की वजह से वो लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे, एंड व्हेन ट्राइब्स आर अनेबल टू रीपे द लोन्स, व्हाट हैपेंस, मनी लेंडर्स की चांदी हो जाती है। तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, उनकी लैंड को स्लैश कर देते हैं। तो पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, लैंड एलिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, आपको लैंड एलिमिनेशन आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं बताऊं, मॉर्गेज है ना, तो मैनी एक्सप्लॉयटेशन होती है ट्राइब्स की, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती है ना। तो क्या होता है, तो इंडेप्टेडनेस की वजह से वो डेट ट्रैप में चले जाते हैं, they fall in debt trap। वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो एक बार डेट ट्रैप में फंसने के बाद वहां से निकल पाना उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। ओके, उसके बाद अगला आता है, अगली प्रॉब्लम आती है बॉर्डर टेबल।
another problems of tribal communities. This is another problem of tribal communities. Okay. अब होता क्या है, जो इंडेप्टेडनेस जब होती है, जब वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जब वो अपनी लैंड भी खो देते हैं, ठीक है, तो लैंड खोने के बाद भी वो क्या होता है, वो लोन नहीं रीपे कर पाते, लैंड भी खो दी, ठीक है, गरीब भी बन गए, लेकिन लैंड अभी भी मनी लेंडर्स के कब्जे में है। अब वो लैंड कब्जे में है और लोन भी सारा खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो होता क्या है कि जो ट्राइबल फैमिलीज होती हैं, ठीक है, ट्राइबल फैमिलीज को क्या करना पड़ता है, डेट को रिपे करने के लिए, तो उनको फोर्स लेबर के लिए उनको करा जाता है, ठीक है, तो इसी फोर्स लेबर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डेड लेबर, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, 40 सिस्टम जो है जुआन ऑफ ओडिशा, आपने केस स्टडीज, इलस्ट्रेशन आपने अपने आंसर राइटिंग में आपको लिखनी ही पड़नी है, ठीक है। तो गौती सिस्टम क्या है, ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है, ये एक बॉन्डेड लेबर है, कहाँ पे, जो जुआंग्स है ना, जुआंग्स ट्राइब है, तो उनको बॉन्डेड लेबर की तरह काम करना पड़ता है, ठीक है, तो अपना डेट को चुकाने के लिए, ओके, तो वहां पे बॉन्डेड लेबर की जैसे उनको काम करना पड़ता है। तो अब इसके लिए बॉन्डेड लेबर को जो है, ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। आप देखोगे लैंड एलिनेशन, पॉवर्टी की इंटरलिंक है, एक प्रॉब्लम होगी तो दूसरी प्रॉब्लम अपने आप बन जाएगी, ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम अपने आप बन जाएगी, ओके। तो अब इसके लिए हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए हैं, ट्राइबल्स के लिए भी हैं, नॉन ट्राइबल्स के लिए भी हैं, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक लीगल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 है जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये प्रोटेक्शन देता है आपको लिबर्टी के लिए, राइट देता है आपको लाइफ के लिए, ओके। तो उसके बाद जो है एक और आर्टिकल है 23, आर्टिकल 23 क्या करता है, ये कहता है, ये प्रोहिबिट करता है, किसको प्रोहिबिट करता है, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, स्लेवरी को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है, और अगर कोई ऑफेंस करता हुआ, कोई अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी है अंडर लॉ। आर्टिकल 23 पनिशमेंट भी देता है उन लोगों को जो कि इसमें डेट में, ये फोर्स लेबर में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जहाँ कोई स्लेवरी करते हैं किसी फॉर्म की, तो उसके लिए ये वो है सजा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल आता है 24, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 जो है,
ये कहता है कि आपने बच्चों को फैक्ट्रीज में, माइंस के काम में आपको नहीं लगाना है, हजारस वर्क में आपको एम्प्लॉय नहीं करना है। ओके, तो हजारस एक्टिविटीज में एम्प्लॉय नहीं करना है। तो अब बॉन्डेड लेबर को रोकने के लिए, फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता है, क्योंकि उनकी लैंड उनके पास होती है, वो डेट ट्रैप में रहते हैं, तो डेट ट्रैप की वजह से वो बॉन्डेड लेबर की तरफ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ राइट्स दिए हुए हैं ट्राइबल्स को, सबके लिए राइट्स हैं। जैसे आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 23 है, जो कहता है कि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, फोर्स्ड लेबर नहीं करवाना है, स्लेवरी नहीं करवानी है। आर्टिकल 24 कहता है कि आपने चिल्ड्रन को जो है वो फैक्ट्रीज में नहीं लगाना है, कोई खतरे वाले काम जो है उनको नहीं देने हैं। ओके, तो उसके बाद आर्टिकल 39 है, ठीक है। तो अब आर्टिकल 39 क्या बोलता है? आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे क्या हो, जो सिक्योर हो, हेल्थ जो है वर्कर की सिक्योर हो, हेल्थ सिक्योर हो वर्कर्स। तो उनकी हमें हेल्थ को क्या करना है, सिक्योर करना है। तो स्टेट को मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ताकि उनकी सिक्योरिटी की जाए, ठीक है। और चिल्ड्रन है या और जो लोग हैं उनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, उसको फ्रीडम मिले, डिग्निटी मिले, चाइल्डहुड है, यूथ है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। तो आर्टिकल 39 ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हम लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कर पाए, वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी पाए, डिग्निफाइड वे में वो रह पाए, ठीक है, उनको फ्रीडम हो, फ्रीडम उनके पास होना चाहिए। तो ये आर्टिकल्स हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ट्राइबल्स को, उनको एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, चाइल्ड लेबर से उनको रोकने के लिए, स्लेवरी एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी प्रैक्टिस से उनको बचाने के लिए, उनके लिए मेजर्स जो है दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट्स को डायरेक्शन दी जाती है आर्टिकल 39 के द्वारा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपने जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, फोर्स्ड लेबर नहीं करना है, बच्चों को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं करना है, ठीक है। स्टेट्स को डायरेक्शन दी जाती है कि आपने हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, यूथ को, चिल्ड्रंस को, वर्कर्स को, उनको ऐसे ऐसे अपने कंडीशंस बनानी है, ऐसे रूल्स बनाने हैं जिससे उनको डिग्निफाइड लाइफ जीने में कोई दिक्कत ना आए, जिनके उनको हेल्दी लाइफ जो है वो जीने में सक्षम हो जाए। ओके, तो अब बाउंडेड लेबर को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। वो क्या बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारा, वो क्या कहता है कि आपने मॉडर्न स्लेवरी जो है, मॉडर्न स्लेवरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारा, जो कहता है कि 2030 तक, ठीक है, तो स्लेवरी जो है, मॉडर्न स्लेवरी, उसको टोटली खत्म करना है, मॉडर्न स्लेवरी को खत्म करना है, फोर्स्ड लेबर को खत्म करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करना है, ठीक है। तो आपने ये, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को जब आप इंक्लूड करते हैं, आप केस स्टडीज को आप जब आप इंक्लूड करते हैं,
ठीक है। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जब आप इसको करंट से लिंक करने की कोशिश करते हैं, करंट एग्जांपल जब आप इसमें दोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर एक जनरल स्टडीज के आंसर की तरह नहीं लगेगा, आपका एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर लगेगा। ठीक है, आपका आंसर एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर लगना चाहिए, जनरल स्टडीज जैसा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मिथ होता है स्टूडेंट्स में कि ये तो इजी टॉपिक्स हैं, बॉन्डर लेबर, लैंड एलिनेशन, ये तो इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं थोड़ा भी पढ़ूंगा तो मैं नंबर ले लूंगा। बट यहीं पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन, मैंने तो वर्ड लिमिट्स भी मैंने वर्ड लिमिट्स में क्वेश्चन को आंसर किया है मैंने। ठीक है, लेकिन आपने आंसर जो है वो आपका जेनरिक आंसर था, वो जो सभी लिख रहे हैं आपने भी वही लिख दिया। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है उसकी मोनोटनी को आपने खत्म ही नहीं किया, तो वो तो जितने बाकियों को मार्क्स दे रहा है उतने ही आपको देगा, उससे कम दे देगा। ठीक है, हाँ, अगर आपका आंसर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपने लिया हुआ होगा, एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स की आपने इसमें कोट किया होगा, केस स्टडीज कोट की होगी, ट्राइबल की एग्जांपल कोट की होगी, तभी आपका आंसर जेनरिक नहीं लगेगा, आपका आंसर जो है एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर आपका होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, हमने डिस्कस किया लैंड एलिमिनेशन, डिस्कस किया पॉवर्टी, डिस्कस किया बॉन्डेड लेबर को हमने डिस्कस किया। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं इंडेपेंडेंस। जो फोर्थ जो प्रॉब्लम है ट्राइबल कम्युनिटीज की, वो क्या है? इंडेपेंडेंस। ये फोर्थ प्रॉब्लम है ट्राइबल कम्युनिटीज की। ठीक है, अब होता क्या है, तो मेजोरिटी जो ट्राइब्स हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, जो आइलैंड में रह रहे हैं, है ना, जो जिनका सिंपल लाइफ है, रिलीजियस बिलीफ उनका सिंपल है, पॉलिटिकल लाइफ स्टेटलेस उनका पॉलिटिकल सिस्टम है ना, मैट्रिलिनियल फॉर्म है उनमें, मैट्रिलिनियल जब पैट्रिलिनियल उनका डिसेंट है ना, तो उनका सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स उनका हम देखते हैं, तो आप उसमें देखोगे कि मेजोरिटी जो ट्राइब्स है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, वो जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। ओके, तो अब ये इंडिपेंडेंस का कारण क्या है? एक तो मैंने आपको बताया कि मनी लैंडर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। मनी लैंडर्स के लिए क्या करते हैं, मनी लैंडर्स जो है, अब उनको एक छोटा स्मॉल लोन लेना हो तो वो क्या करता है, वो मनी लैंडर्स के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरे को लोन दे दीजिए। ओके, तो मनी लैंडर्स जो होता है उसको, उसके दिमाग में तो आता है कि आगे मछली, अब मैं इसको फंसाऊंगा। ठीक है, तो हायर इंटरेस्ट पे उसको लोन दे देगा। ठीक है, तो अब मैरिज जब उनको करनी है ना, या फिर उनको कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, अपने किड्स की मैरिज करनी है, तो लोकल मनी लैंडर्स के पास चले जाते हैं, उनसे उधार ले लेते हैं, तो उधार उसको मनी लैंडर्स तो बड़ी खुशी खुशी उनको लोन दे देता है ना, उसको पता है कि ये लोन चुकाएगा नहीं, तो इसके पास जो लैंड होगी, जो ऑनरशिप इसके पास ऑनर में इसकी लैंड होगी, तो वो मैं छीन लूंगा। और उसके बाद डिपेंडेंस है मनी लैंडर्स के बाद, उसके बाद जो है बैंकिंग फैसिलिटीज जो है इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज। अब बैंक्स की ब्रांचेस आपको ट्राइबल एरियाज में रेयर ही नहीं, तो ये कारण भी है। ठीक है,
तो अब सेम उनको फिर मनी लेंडर्स के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मनी लेंडर्स से क्या होता है कि अपना जो राइट होता है उनका, वो अपना राइट जो है लैंड के ऊपर वो खो देते हैं, लॉस ऑफ राइट्स ओवर लैंड। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पूर होती है, पूर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हो जाती है, बारिश नहीं आई है, ठीक है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर उनकी पूर होती है तो वो गरीब हो जाते हैं, वो और जाते हैं मनी लेंडर्स के पास, वो उनसे लोन लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे की शादी करनी है, जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, ठीक है, जब वो पॉवर्टी में है इतने सारे, ठीक है, जब हमारे जो लैंड एलिमिनेशन एक्ट हैं जितने भी बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जब उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है, तो जब बैंकिंग फैसिलिटी जो नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो गांव में नहीं है, ट्राइबल एरिया में नहीं है, तो नेचुरली ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ट्राइबल्स को फेस करनी पड़ती है। ओके, बाउंड्री लेबर मैंने बताया आपको। ओके, तो ये रीजंस हैं। तो अब देखें कि गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट आपको बताया, मैंने पीसा एक्ट लगाया है ना, तो इंडेप्टेडनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीजें हैं, पीसा एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है। आरबीआई ने क्या किया है, बैंक ब्रांचेस जो है वो सेटअप की है ट्राइबल एरियाज में। जब बैंक ब्रांचेस आप सेटअप करते हो ट्राइबल एरियाज में, तो उसमें क्या होता है, उनकी डिपेंडेंसी जो है मनी लेंडर्स के ऊपर कम हो जाती है। ठीक है, तो अब वो क्या करती है, अब स्ट्रिक्टनेस है, स्ट्रिक्टनेस जब होगी तो बॉन्डेड लेबर एक्टिविटीज के ऊपर चेक होगा, जब स्ट्रिक्टनेस होगी तो बॉन्डेड लेबर एक्टिविटीज पे चेक होगा। तो गवर्नमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है ट्राइब्स के लोगों का, कोऑपरेटिव्स बनाती है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। तो ये रिकमेंडेशन है। अब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन की बात करें, है ना, तो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने पीसा एक्ट लाया है, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया है ना, तो कॉपरेटिव्स बनाई है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश करती है, गवर्नमेंट ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सेटअप की है ट्राइबल एरियाज में। गवर्नमेंट ने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सेटअप, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पे लेबर जो है ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेबर्स की जो जो है रिक्वायरमेंट जो है, लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वहां पे लगाती है, तो क्या होता है, लेबर्स जो ट्राइबल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, पॉवर्टी ठीक हो जाती है ना। तो ओके, तो बड़ी सारी अब देखा जाए तो पॉवर्टी के भी बड़े सारे रीजंस हैं। ठीक है, पॉवर्टी के रीजंस ये हैं कि वो एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस है एग्रीकल्चर में। ठीक है, इंडेप्टेडनेस है। अब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आता है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स आता है, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आता है, माइनिंग प्रोजेक्ट आता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी उनको अपनी लैंड से हाफ को देना पड़ता है। ओके, और गवर्नमेंट को इनफ वहां पे
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स नहीं किए जाते हैं एक्सक्लूसिव फॉर ट्राइब्स। इंडस्ट्रीज तो सेटअप करती है लेकिन उनको इंडस्ट्रीज का बेनिफिट नहीं मिल पाता, उनको वहां से रिहेबिलिट ही कर दिया जाता है, उनको वहां से जो है वो वहां से निकाल ही दिया जाता है। तो ये चीजें गवर्नमेंट ये रीजंस है पॉवर्टी के लिए, ठीक है। और देखा जाए तो जो है अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म भी आपको वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज में देखना पड़ेगा। जो वो कमाते हैं थोड़ा बहुत, वो उड़ा देते हैं अल्कोहल में, ये भी एक कारण है गरीबी का, ठीक है। सिंपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। तो एग्रीकल्चर करते हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग कल्चर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि क्या करेंगे, वो सबसे पहले फॉरेस्ट में जाएंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, फॉरेस्ट को पेड़ काटेंगे, तो जगह को खाली करेंगे, तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी को प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे, जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जब वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पूर्ण हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेंगे, दूसरी जगह में शिफ्ट करेंगे, फिर वहां पे पेड़ काटेंगे, वहां पे लैंड को लेवल करेंगे, फिर वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे। तो शिफ्टिंग, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो शिफ्ट करते रहते हैं वन पीस ऑफ लैंड टू अनदर पीस ऑफ लैंड। ओके, अब एक और रीजन मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट क्या क्या एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही है जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, उनकी डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। कैसे डेवलपमेंट की जाती है, उनको वहां पे हाउसिंग घर बना के दिए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, है ना, लैंड की डेवलपमेंट की जाती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वहां पे एनकरेज की जाती है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जाता है, ओके। ताकि अब जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, PVGT, जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, गवर्नमेंट बड़ी सारी स्कीम्स इनके लिए लेके आती है, हाउसिंग स्कीम्स इनको प्रोवाइड की जाती है, इनका एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है ट्राइबल एरिया से, है ना। और रोड्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, है ना, वहां पे इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेट करती है और उनको क्या एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है गवर्नमेंट बना रही है, उनको गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में अवेयर किया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, एक comprehensive socio-economic डेवलपमेंट की जाती है, कंप्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो की जाती है ट्राइब्स के लिए, ठीक है। और जो होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको मैंने बताया कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल डेवलपर्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 तो वो अनुमति देता है, वो अथॉरिटी देता है, वो ट्राइब्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो फॉरेस्ट से कुछ मिनरल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेस्ट में कुछ एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो वहां से फॉरेस्ट से तैयार करते हैं, ठीक है। तो अब जो उनको सेल भी करना है, वहां से मान लो जंगल से वो लकड़ी लेके आते हैं, ठीक है, या फिर और कोई हर्ब्स लेके आते हैं, जड़ी बूटियां लेके आते हैं, टिम्बर लेके आते हैं, ओके। अब उनको सेल करना है, तो जब सेल करेंगे तो तभी उनको रोजगार मिलेगा, लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें एमएसपी प्रोवाइड करती है, एमएसपी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके लिए एमएसपी प्रोवाइड की जाती है, ओके। ओके गाइस, तो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइबल की प्रॉब्लम्स को, ओके। हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, तो इसके आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके गाइस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। बाय बाय, टेक केयर।